السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو خبر دیتے چلیں، قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں چھت گرنے سے خاندان پر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی۔ بارش ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی جان لے گئی۔ جہاں بک افراد میں میاں بیوی اور 3 بچے شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے پھنسے افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مرنے والوں کی شناخت گلشاد شگفتہ مریم آمنہ علی حیدر کے نام سے ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں، قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں چھت گرنے سے خاندان پر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی۔ بارش ایک ہی خاندان کے 5 افراد کی جان لے گئی۔ مونسون بارشوں نے سندھ کو پانی پانی کر دیا۔ صوبے بھر میں رین ایمرجنسی نافذ ہے۔ مسلسل بارشوں سے نظام زندگی درہم بھرم ہو گیا۔ مختلف شہروں میں بارش کا پانی تاحال جمع ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سندھ میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ مسائل کے باعث لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ حیدرآباد میں بارش تو تھم گئی، مگر مسائل جوں کے توں ہیں۔ موسلادھار بارش کے باعث قاسم آباد سمیت مختلف علاقوں میں پانی تاحال جمع ہے۔ شہر کی اہم شاہراہیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ عمر کوٹ کے مختلف علاقے بھی بارش کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں۔ مختلف گوٹوں کی آبادیاں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ سینکڑوں غریب خاندان بے گھر ہو گئے۔ متاثرین نے محفوظ مقامات پر نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ دادو میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں۔ چند روز قبل آنے والے سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ پھر سے سیلاب نے کاچو کے مکینوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کاچو میں کیرتھر کے پہاڑی سلسلے میں موسلادھار بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی، جس سے 300 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے ہیں۔ شدید بارشوں کے باعث تھرپارکر کا اسپتال بھی ڈوب گیا۔ بدین اور دولت پور کے نالوں میں شگاف پڑنے سے ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی ہے۔ ٹھٹھا میں بھی سڑکیں اور گلیاں بارش کے پانی سے بھر گئی۔ لاڑکانہ میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ سیون شریف کے نواحی گاؤں کرمپور میں بارش کی وجہ سے گھر کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق جبکہ 1 شدید زخمی ہو گیا۔ حیدرآباد میں بارش برسنے سے 2 دن گزر گئے، لیکن قاسم آباد کے مختلف علاقوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ کاروبار زندگی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جہاں زیب علی۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش کے باعث تلکہ قاسم آباد کے بیشتر علاقے، علی پیلس روڈ، شیدی گوٹ، لندن ٹاؤن اور دیگر مقامات پر بارش کا پانی تاحال جمع ہے، جس کی وجہ سے کاروباری زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ حیدرآباد اور میونسپل کمیٹی قاسم آباد اور بلدیہ انتظامیہ کے نااہلی کی وجہ سے نکاسی آب کا کام ابھی تک سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اہم شاہراہیں، سڑکیں، محلے اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بارش زیادہ پڑی ہے، تھوڑی بہت بارش پڑی، اتنی پڑی ہے کہ شہر سارا ڈوب گیا ہے۔ وہ آنے سے پورا قاسم آباد جو ہے نا وہ ڈوبا ہوا ہے۔ یہ قاسم آباد مہران سینٹر جو پورے قاسم آباد کا ہب ہے ایک، یہاں پہ نہ تو کوئی میونسپل کا کام ہوتا ہے، نہ ہی تو جو ہے نا وہ سرکار کے جو نمائندے ادھر بیٹھے ہوئے۔ جیسے ہی بارش ہوئی ہے تو یہ سارا پانی جو ہے نا مارکیٹ کے اندر آ گیا ہے۔ یہ ساری گٹر لائن وغیرہ جو ہے نا وہ ساری بند ہو گئی ہے۔ شہریوں نے مزید کہا کہ قاسم آباد میں نکاسی آب کے منصوبے کرپشن کی نظر ہونے کے سبب آج یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے۔ حکومت سندھ کو چاہیے کہ حیدرآباد میں بارش کے بعد نکاسی آب کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ کیمرامین مانی پٹھان کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ سندھ کے دیگر شہروں کی طرح سیون میں بھی بارش سے نصیبی علاقے زیر آب آ گئے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سیون شریف اور گرد و نوائی علاقوں میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیون، بانس، حیدرآباد، جھانکارا، باجارہ، بوبک اور کرمپور میں 3 سے 4 فٹ پانی جمع ہو گیا۔ گاؤں کرمپور میں بارش کا پانی نکال نہ ہو سکا۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل، کچے پکے مکان، دکان، دیواریں گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ جامشورو گاؤں کرمپور کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ بارش کا پانی تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔ بارش کی وجہ سے عام زندگی مفلوج ہو گئی۔ علاقے مکین گھروں تک محدود ہیں۔ گاؤں کرمپور کی بارش متاثرین نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، کمشنر حیدرآباد، ڈپٹی کمشنر جامشورو، اسسٹنٹ کمشنر سیون سے گاؤں کرمپور میں سے بارش کا پانی نکال کروانے اور نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین رنجن سولنگی کے ساتھ شامیر خان، اٹھو سچ ٹی وی نیوز، سیون شریف۔ برے والا اور پتوکی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش نے منظر ہی بدل دیا۔ جہاں فصلوں پر اچھا اثر ہوگا، وہیں بجلی اور سیوریج کے نظام میں مسائل کی بھرمار بھی ہے۔
बुरेवाला और पतोकी में बारिश ने जलथल एक कर दिया। रात के मूसलाधार बारिश होती रही। तेज बारिश से मसाइल की भी भरमार होने लगी। शहरों के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरों में बिजली की आंख मचोली जारी। पतोकी में कई फीडर्स ट्रिप कर गए। शदीद बारिशों पर माहिरीन का कहना है कि बारिश से चावल की फसल पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। हब में पानी की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। करीबी रिहायशी इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया गया। पानी के अखराज के लिए हब डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। हब नदी के करीब रिहायशियों को अलर्ट जारी कर दिया गया। एरीगेशन हुकाम के मुताबिक हब डैम में पानी की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। हब डैम भरने से हब नदी में सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा है। पानी की सतह 330.5 फीट तक हो गई। गुंजाइश 339 फीट है। पानी के अखराज के लिए हब डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। चित्राल में सैलाबी रेला रेशन पुल को बहा ले गया, जिससे कई इलाकों का चित्राल से जमीनी राब्ता कट गया है। चित्राल में सैलाब ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। अपर चित्राल को जाने वाली वाहिद सड़क सैलाब के बाइस तबाह हो गई, जिससे चित्राल के मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। रास्ता बंद होने से सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है। वजीर आला महमूद खान ने जिली इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत की है। राजनपुर की तहसील रोजान में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया। शहर की सड़कों पर कई फीट बारिश का पानी जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि तहसील इंतजामिया मंजर आम से गायब है। मजीद जानते हैं मलिक तुफैल की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने रुझान शहर का नक्शा बदल दिया। बारिश के बाद शहर में जगह जगह सड़कें गलियां तालाबी शक्ल अख्तियार कर गई हैं, जिसमें थाना रोड, अस्पताल रोड, मेहरान मार्केट, बन्नू मार्केट में बारिश का पानी से कई फुट जमा है। बारिश के बाद शेख खलीफा अस्पताल और थाना रुझान बारिश की नजर हो गया है। अस्पताल रोड पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये बारिश का पानी आता है यहाँ तो इंतजामिया वाले कोई भी हरकत में नहीं आते। यहाँ 2-2 फुट पानी होता है। बाजार का सारा निज़ाम इन्होंने धर्म भरम कर दिया है, तबाही हो चुकी है और अभी कोई भी परिंदा यहाँ नजर नहीं आ रहा। इंतजाम जो है यहाँ का नाकिस है, इंतहाई भी बहुत है। यहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकता है, यहाँ ना कार आ सकती है, ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना पैदल चलने के लिए भी मुश्किलात हैं। कोई इंतजाम नहीं है, कोई बल्दियात वाले कोई नजर भी कहीं भी नहीं आ रहे हैं। गली कूचे बाजार जहाँ भी जाओ यही पानी से भरा हुआ है। बारिश का पानी जमा होने की वजह से दवाईकीन ने मरीज को उठाकर अस्पताल पहुंचाया है। म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन घर बैठे मुफ्त में तनख्वाहें वसूल करने लगे। तहसील इंतजामिया की जानिब से निकासियात के लिए किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब कमिश्नर बेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से बड़ी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मलिक उजैर अहमद के साथ सच न्यूज़ रोजान। उधर सियालकोट में भी बारिश से जलथल एक हो गया। मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सियालकोट में बारिश से जलथल एक हो गया। मूसलाधार बारिश से शहर की गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश से नाला एक और डेक में तुग़यानी आ गई। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। इंतजामिया की जानिब से तमाम इदारों और मुहल्लिका आबादियों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। मूसलाधार बारिश से दरियाए चनाब में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सियालकोट में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर घरों की छतें गिरने से एक खातून जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला मजीद जारी रहने की पेशगोई की है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। मंडी बहाउलदीन में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। निकासी आब का मुनासिब निजाम न होने के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान वड़ाइच। जी मंडी बहाउद्दीन और गिद्दरवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिससे जेल रोड, थाना रोड, काला चौक समेत शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया। गलियां और सड़कें नहरों में तब्दील हो गयी और शहर में निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी से दो चार होना पड़ा। दूसरी जानिब बारिश शुरू होते ही बिजली के फीडर ट्रिप करने से बिजली बंद हो गई। नशेबी इलाकों के घरों में बारिश का पानी दाखिल होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। भावलपुर की सब तहसील उस शरीफ में सदर बाजार और दीगर गली मोहल्लों में लगे गंदगी के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। ताफुन के बायस शहरियों का जीना महाल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर।
ओट शरीफ में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे, जिसके बाद शहरियों को दोहरी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। ओट शरीफ, मोहल्ला गिलानी और शहर के औसत सदर बाजार कूड़ा क्रिकेट का मरकज पेश करने लगा। गंदगी के ढेर से बदबू और ताफुन फैलने लगा, जिसके बाद मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा होने के साथ शहरी डेंगू मलेरिया जैसी मुर्जी मर्द में मुब्तला होने लगे। हुकूमत की जानिब से न तो कोई कूड़ा बॉक्स लगाया गया है, न ही इंतजामिया कचरा उठाने के लिए आती है। राहगीर समेत राहगीरों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत और मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मोहल्लों में एक तो कूड़ा बॉक्स लगाया जाए तो दूसरी जानिब कचरे को उठाकर शहर से बाहर फेंका जाए। कैमरामैन इजाज हुसैन के साथ आज मोहम्मद साच न्यूज़ ओट शरीफ। दरिया सतलज में पानी की सतह में इजाफा होते ही हेड इस्लाम से मुलक्का मौजाजात में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। दरिया सतलज में पानी की सतह में इजाफा होते ही हेड इस्लाम से मुलक्का दर्जनों मौजाजात में सैलाब के खतरात मंडलाने लगे हैं। सैलाब से सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबा काश्त फसलें ज़ेरे आब आने का भी खदशा है। जिले इंतजामिया की जानिब से फ्लड वार्निंग तो जारी की गई है, मगर कोई इकदामात नहीं किए गए। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले पा रहा। तब्दीली के दावेदार बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत भी मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने में ताहाल कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली और दीगर पुरकशिश नारों की बुनियाद पर इक्तदार में आने वाली बलूचिस्तान की मौजूदा मखलूत हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद सूबे के दीगर हिस्सों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में भी मसनूई महंगाई पर काबू पाने में ताहाल कामयाब नहीं हो सकी है। मुतलका हुक्काम की गफलत और बेहिसी के बायस जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों ने अशयाए खुर्दनोश की कीमतों में इस कदर इजाफा कर दिया है कि बुनियादी जरूरत की अशिया लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। यहाँ पे सब ज़ख़ीरा अंदोज बैठे हुए हैं, ज़ख़ीरा अंदोजी करते हैं। हुकूमत को सबसे पहले उनके ऊपर जो है चापे मारना चाहिए, उनके माल को जब्त करना चाहिए ताकि गरीब आवाम और लोगों को यहाँ पे जो है रिलीफ मिले और लोगों को जो है आटा, चीनी, घी ये चीजें सस्ता मिले। शहरियों के बकौल जिली प्राइस कंट्रोल कमेटी जारी किए गए सरकारी नखनामे पर अमल दरामद कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए शहर में मुनाफाखोर आए रोज अशयाए खुर्दनोश की कीमतों में मनपसंद इजाफा कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी के जितने मेंबरान है वो सिर्फ बराए नाम है, वो बैठे हुए, उस कमेटी का कोई मकसद ही नहीं रहा, क्योंकि जब अमल दरामद नहीं होगा ऐसी कमेटी ऐसी चीज़ों पे जो है ना वो कमेटी बनाना फजूल रहती है। कोई पूछने वाला नहीं है, हर बंदा जो है ना अपना रेट जैसे मनमानी उसका चाहिए वही रेट तय करता है। आवाम जो है दर पदर है। कोयटा में अशयाए खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ सिविल सोसाइटी की जानिब से अदालत आलिया बलूचिस्तान से भी रुजू किया गया है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। हुकूमत महंगाई के सामने बेबस होकर रह गई। शहरियों के लिए अब सब्जियां खरीदना भी महाल हो गया। सब्जियों की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। वहाड़ी से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम। हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल न कर सकी। पेट्रोल, आटा, गैस, बिजली की कीमतों में बेताशा इजाफे के बाद अब सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। आलू 120 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, अदरक 600 रुपए किलो, बैंगन 120 रुपए किलो और दीगर सब्जियां भी आसमान से बातें करने लगी। शहरी परेशानी में मुब्तला। शहरियों को कहना है बहुत महंगाई हो गई है, ठीक है, तो जड़ी सब्जी है ਉਹਦਾ भी रेट बहुत है, आवाम बहुत परेशान है। 100 रुपए किलो, टमाटर 70 रुपए किलो, गरीब आवाम कितने टमाटर आलू बाजार गुजरे, अदरक भी 500 रुपए किलो हो गए। तो सब्जियां तो अलावा फल फ्रूट ये वो सब कुछ मांगे करते हैं। और बताऊं अगर कोई खाता नहीं है 120 रुपए किलो बताऊं है, क्या करेगी पाकिस्तान आवाम? कौन सी तब्दीली है, क्या तब्दीली है? हमें तो यही पता नहीं चल रहा कि तब्दीली के नाम पे क्या हमें करवा रहे हैं। स्कूल इन्होंने बंद करवा दिए हैं, हमें सड़कों पे ला दिया है। मैं स्टूडेंट हूँ, 10th क्लास में पढ़ता हूँ। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो किसी दूसरे को मौका दें। खाने पीने की चीज़ें भी अगर गरीब की पहुंच में नहीं होंगी तो गरीब एक वक्त की रोटी को भी तरसेगा। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम, सच न्यूज़, बिहाड़ी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अदू में मकामी शुगर मिल्स की जानिब से शहर भर में जगह जगह सस्ती चीनी के स्टॉल्स लग गए, जहां शहरियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं इसहाक काजमी। अवाम आए रोज नए माफिया से लुटने पर मजबूर। हुकूमती दावे बयानों की हद तक महदूद दिखाई दे रहे हैं। दुकानों पर चीनी नायाब, जबकि कुछ दुकानदार ब्लैक में चीनी 95 से 100 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। जबकि मकामी शुगर मिल की जानिब से कालीपुर पर सस्ती चीनी के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त जारी है और स्टॉल पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है, जिससे आए रोज चीनी की कीमत में इजाफा
ہو رہا ہے اور شہری مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ آئے روز اشیاء خردنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عام آدمی سے جینے کا حق چھین لیا ہے، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ نامے میں چینی کا ریٹ 70 روپے کلو درج ہے، جبکہ ہماری خرید چینی 91 روپے کلو ہے۔ ہم کیسے 70 روپے کلو میں فروخت کریں؟ حکومت چینی بلیک کرنے والے مافیا کے خلاف کارروائی کرے تو چینی کے دام کم ہوں گے اور شہریوں کو سستی چینی میسر آئے گی۔ میں چینی ملتی نہیں، غریب بندے کہاں جائے؟ وہاں جاتے ہیں 100 روپے کلو ہے، یہاں ہے 70 روپے کلو ہے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہو گئے لائن لگی ہوئی، ابھی ہم کھڑے کھڑے واپس جا رہے ہیں، چینی ختم ہو گئی، چینی نہیں مل رہی۔ جو بغیر لائن کے آ رہے ہیں ان کو چینی دے رہا ہے، میں چینی نہیں دے رہا۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلیک مافیا کے خلاف انتہائی قدم اٹھائے۔ کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ اسحاق کاظمی، سچ نیوز، کوٹ ادو۔ قصور کے علاقے رکن پورہ بجلی کی لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے وبال جان بن گئیں۔ ماہر محمد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ مناظر ہے قصور کے علاقے بسترپورہ رکن پورہ صابر بستی کے، جہاں بجلی کی ننگی لٹکتی تاریں علاقہ مکینوں کے سروں پر موت بن کر لٹک رہی ہیں اور بچوں سمیت علاقہ مکینوں کے چھو جانے سے موت کا پیغام بن سکتی ہیں۔ آج کل برسات کے موسم میں دیواروں میں کرنٹ آنے سے اس کے خطرات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار وابڈا کے افسران کو درخواستیں دیں مگر محکمہ وابڈا شاید کسی بڑے حادثے کے انتظار میں ہے۔ پہلے تو جی میں سچ نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اہل علاقہ کی آواز بنے ہیں، انہوں نے اہل علاقہ کے لیے کوشش کی ہے، کیونکہ یہ تاروں کا مسئلہ ہے نا، یہ بہت درینہ مسئلہ ہے، پرانا مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ متعدد بار وابڈا کے ملازمین کو بھی کہا ہے اور جو ایس ڈی او صاحب ہے، ایکسن صاحب ہے، ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے جو یہ گلی کی تاریں اونچی کی جائیں، کیونکہ یہ تاریں اتنی نیچی ہیں، کوئی چیز لے کے گزرتا ہے تو اس کے سر کو بھی لگ سکتی ہے۔ برسات کا موسم ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کراچی کے جو حالات ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی بندہ کرنٹ لگنے سے وفات پا رہا ہے، تو اگر قصور میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو پھر یہ ہیڈ لائن بنے گی۔ اس سے پہلے یہی اچھا ہے کہ یہ اس پہ غور کریں۔ بجلی کی ننگی تاریں اور نیچے لٹکتے میٹر وابڈا کی توجہ کا ثبوت ہے۔ شہری ہزاروں روپے کے بل ٹیکسوں سمیت ادا کرتے ہیں مگر محکمہ وابڈا ان کی شکایت جس سے زندگیوں کو خطرہ ہے ان کو دور نہیں کر رہا۔ گچھے بنے ہوئے ہیں تاروں کے، تو کوئی بھی چیز لے کے جاتے تو سر کو تو ٹچ ہوتی ہے، تو کرنٹ بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ آتا نہیں، آتا ہے کرنٹ۔ جیسے کہ دیوار کو ہاتھ لگائیں گے تو ارتھ آتا، میرے اسکول کے سامنے تاریں وہ ادھر ارتھ آ رہا ہے، جا کے ابھی چیک کر لیں۔ تو گلی میں بھی یہی حال ہے، لیکن ہم تو 2-3 سال سے یہ کہہ رہے ہیں بھی یہ تاروں کو ٹھیک کریں، یہ جو اینگل نکل جاتا ہے اس کو وابڈا والے آ کے لگاتے ہی نہیں ہیں۔ شہریوں کا اعلی حکام سے مطالبہ ہے کہ بجلی کی ترسیل کے مربوط نظام کو درست کر کے علاقہ مکینوں کی پریشانیوں کا حل کیا جائے تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ مہر محمد امین، سچ نیوز، قصور۔ آگے بڑھیں اور خبر دیں آپ کو راجن پور سے، جہاں رشتے کے تنازع پر 2 قبائل کے درمیان فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 3 خواتین اور 1 مرد شامل ہے۔ راجن پور میں تھانہ سٹی کی حدود میں رشتے کے تنازع پر 2 قبائل میں فائرنگ سے 4 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد میں 3 خواتین اور 1 مرد شامل ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پاک وطن کا دورہ کیا اور دربار بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پاک وطن پہنچ کر دربار بابا فرید پر حاضری دی اور مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر ملکی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابا فرید یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ارکان اسمبلی نے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ضلع پاک وطن میں محرم الحرام کے انتظامات پر بھی وزیر اعلیٰ کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس بھی ہوا۔ اور اب ذکر کربلا والوں کا۔ سات محرم الحرام شہزادہ قاسم سے منسوب ہے۔ آپ علیہ السلام نے آخری سانس تک امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نبھایا۔ قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا آ گیا۔
मुहर्रम की 7 तारीख बयान पहुंची। पुरसादारी भी अपनी इंतहा को पहुंच रही है। आज सब नवासे रसूल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहजादे जनाब कासिम पर गिरिया कर रहे हैं। मुहर्रम की 7 तारीख जनाब कासिम की शहादत से मंसूब है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने भी मैदान करबला में अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए। उनकी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अजीम सदमा थी। कमसिन शहजादे कासिम ने रोज़े आशूर जंग का लिबास ज़ेब किया और अपने चचा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान में जाने की इजाजत तलब की। इमाम अलैहिस्सलाम इजाजत देना नहीं चाहते थे, मगर भाई की वसीयत और कासिम का शौक़ शहादत देखते हुए इजाजत दी। लश्कर उमर साद का एक रावी कहता है, हमने एक जवान को देखा जो घोड़े पर सवार है और उसके सर पर अमामा है। जवान इतना हसीन था जैसे चांद का टुकड़ा हो। जनाब कासिम ने फौज यजीद के सामने मैदान कारजार में अपना तारुफ इन अल्फाज में कराया, अगर मुझे नहीं जानते तो जान लो, मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बेटा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। हजरत कासिम जैसे ही मैदान में गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुलजना की बागें हाथों में थाम ली, जैसे कि वो किसी साहने के मुंतजिर हों। इतने में एक आवाज सुनाई दी, चचा मेरी मदद को आइए। रावी कहता है, इमाम बाज की मानंद जनाब कासिम के पास पहुंचे, लेकिन इस दौरान फौज यजीद में तलातुम बपा हो गया। एक तरफ से घोड़े दूसरी तरफ दौड़ने लगे और शहजादा कासिम का जिस्म घोड़ों ने पामाल कर दिया। कासिम के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब हुसैन ने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा, रिदा उतारी, कासिम के जिस्म के टुकड़े जमा किए और खैमगाह की तरफ लेकर चले। रावी लिखता है, करबला में तमाम शहदा के जसद फौज यजीद ने पामाल किए, लेकिन शहजादा कासिम के जिस्म पर जिंदगी में ही घोड़े दौड़ाए गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़े गठड़ी की सूरत खैर में लाए। आज उन्हीं शहजादा कासिम की याद में मजालिस और जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। अज़ादारी मजलूम करबला का सिलसिला 8 रबीउल अव्वल तक जारी रहता है। यजीदी लश्कर ने खानदान नबूवत और साकी कौसर के फर्जंद पर पानी बंद कर दिया। ख़याम में प्यास के साए गहरे होने लगे। ख़याम हक में हक व बातिल का मार्का सर करने की लगन जारी है। क़याम हुसैनी से बच्चों की अल अतश की बुलंद होती सदाएं। जी हाँ, ये बच्चे खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जिन पर फौजी अश्किया ने पानी बंद कर दिया है। 7 मुहर्रम को यजीद के हुक्म पर इब्ने साद ने दरियाए फुरात पर दस्ते तैनात कर दिए और नवासे रसूल पर पानी बंद कर दिया। क़याम हुसैनी में अब पानी ना रहा। अहले बैत के क़याम में कहते आप तपते रेगिस्तान में बच्चों की सदाएं दिल पिघलाए दे रही थीं, लेकिन शिमर मलाउन खुश था कि नबी की आल प्यासी है। नारों का जोर, बाजों का शोर, दफ और तालियों की बेहंगम सदाओं से जमीन का सीना दहलने लगा। ऐसे में खेमों में प्यास के साए गहरे होने लगे, प्यासी सदाएं दबने लगी। हवा साकित, फिजा गुबार आलूद और सूरज सबे नेज़े पर आया हुआ है। प्यासी माएं बच्चों की प्यास कम करने के लिए उन्हें इमाम वक्त पर कुर्बान होने का दरस देती रहीं। अहले बैत रसूल पर पानी की बंदिश से फुरात भी हैरानो पेशमान है। रंजीदा है कि इसके किनारे फरजंदे रसूल और उनकी आल प्यासी है। शर्मिंदगी है कि अल अतश की सदाएं सुनकर भी बेबस है। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़ारा चकवाल में 7 मुहर्रम की मजालिस अज़ा में उलमा व ज़ाकिरीन ने शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत बयान की, जबकि 7 मुहर्रम उल हराम शबी अलम व जुलजना का रवायती जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास।
इमाम बारगाह गुलस्तान इज़ारा चकवाल में 7 मुहर्रम उल हराम की मजलिस एजाज़ से ज़ाकिर अमीरुल हसन काज़मी ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि 7 मुहर्रम उल हराम को यजीदी फौज ने पानी बंद कर दिया, मगर नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना के दीन को बचाने की खातिर हर तकलीफ बर्दाश्त की। वाक़ई करबला हमें सब्र, इस्तिकामत और बर्दाश्त का सबक देता है, इसलिए दीन इस्लाम की खातिर हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने मजलिस एजाज़ में शहजादे अली अकबर की शहादत पढ़ी, जिस पर अज़ादारों ने अज़ादारी करके शहजादे अली अकबर को पुरसाब पेश किया। मजलिस एजाज़ का एहतमाम मुतवल्ली चौधरी हज़रत अब्बास ने किया। 7 मुहर्रम उल हराम शबी अलम वजुल जना का रवायती और 7 जुलूस मरकजी इमाम बारगाह सरपाक से बरामद हुआ, जबकि सैयद कमर अब्बास शाह की रिहाइशगाह से शबी जुलजना बरामद हुई। जुलूस पुरानी सब्जी मंडी सराफा बाजार से होता हुआ छपड़ बाजार पहुंचा, जहां मजलिस एजाज़ बरपाई और मौज़ाकरीन ने फज़ाइल और मसाइब बयान किए। मजलिस के बाद अज़ादारों ने मातमदारी करके नौखानी करके शुदाए करबला को पुरसाब पेश किया। जुलूस मुकर्ररा से होता हुआ इमाम बारगाह मुहाजिरीन सादात पर इख्तिताम पजीर हो गया, जबकि जुलूस के दौरान मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रही। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल। चनियोट में हजरत गाजी अब्बास अलमदार के अलम की शबी बनाने वाले अलम साजों के काम में तेजी आ गई और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद अलम हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की शबी अपने घरों पर लगाने और जुलूसों में ले जाने के लिए अलम साजों की दुकानों का रुख करने लगे। रिपोर्ट करें अब्दुल रहमान कलियार। ईमान शुजात और वफा की बुलंदियों पर जब नजर डालते हैं तो वहाँ हजरत गाजी अब्बास अलमदार नजर आते हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो फजल कमाल कुव्वत जलाल में अपनी मिसाल आप। वही मुहर्रम अल हराम शुरू होता है तो पूरे आलम इस्लाम की तरह चनियोट में भी हजरत गाजी अब्बास अलमदार के अलम की शबी बनाने वाले कारीगरों के काम में तेजी आ जाती है। मनतों वाले लोग हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी को अपने घरों पर लगाने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी खरीदने वाले अकीदतमंदों का कहना था कि मैं सियालकोट से आया हूँ, यहाँ से पता लगा कलम बनाते हैं ते मेरे मालिक ने मैनू घर दिता है तो मैं मौला दे सदके मौला गाजी अब्बास का अलम लगाने के लिए सियालकोट से अलम लेने आया हूँ। हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी बनाने वाले कारीगरों का कहना था कि सारा साल हम बड़ी मेहनत और अकीदत से हम अलम पाक की शबी बनाते हैं और मुहर्रम अल हराम में इस काम में तेजी आ जाती है और बहुत ज्यादा अकीदतमंद हमें इसका हदिया देकर ले जाते हैं। हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हजरत अब्बास का अलम बनाते हैं और बड़ी दूर दराज से लोग बड़ी अकीदत के साथ हमारे से लेने आते हैं और जो हदिया नजर नियाज के तौर पे हमें दे जाते। हजरत गाजी अब्बास अलमदार जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला में आए तो उन्होंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम से मोहब्बत की ऐसी लाजवाल दास्तान रकम की कि जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। आज भी जुलूसों में हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शबी से आजादारान की वहलाना मोहब्बत नजर आती है। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चनियोट। कतबा इंसान की जिंदा या मुर्दा दोनों सूरतों में पहचान के लिए लगाया जाता है, लेकिन मुहर्रम उल हराम के दिनों में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। वजह बता रहे हैं कबीर वाला से अब्दुल मजीद बाटी अपनी इस रिपोर्ट में। कतबा इंसान को जिंदा या मुर्दा दोनों सूरतों में पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ कतबों से मुराद कब्रों या मज़ारों पर लिखी तहरीर ली जाती है, जबकि घर के बाहर लगाई गई तख्ती, संगे मील की इफ्तिताही मंसूबे की स्लेट या फिर किसी को खुश आमदीद कहने के लिए कंधा की गई तहरीर कतबे की मुख्तलिफ अक़साम शुमार की जाती है। किसी जमाने में सिर्फ पत्थर पर ही कतबे लिखे जाते थे, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ लकड़ी, स्टील, पीतल और प्लास्टिक के कतबे भी लिखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से संग तराशी का काम सिर्फ मुहर्रम उल हराम के दिनों तक महदूद होकर रह गया है। आम दिनों में ये काम न होने के बराबर होता है। ये भी कब्रों पे लगाते हैं कतबा और सवाब की नीयत से ज्यादा ये काम चलता है और मुहर्रम के दिनों में ये काम होता है। एक कतबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर मुकम्मल होता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के पत्थर हैं, इसमें कराची मार्बल है, सनी ग्रे है, सनी वाइट है, जियारत वाइट है, सुपर वाइट है, जियारत ग्रे है, मुख्तलिफ शाम के पत्थर हैं। सबसे पहले मतलूबा साइज के मुताबिक पत्थर काटा जाता है, जिस पर कातिब कलम की मदद से कच्ची स्याही से लफ्ज तहरीर करता है। उसके बाद कतबा साज, छेनी और लोहे की पट्टी की मदद से कंधाकारी का काम करता है और सबसे आखिरी मरहले में उंगली की मदद से रंग लगाया जाता है और रेग मार लगाकर इसे साफ करके फाइनल किया जाता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज कबीर वाला। टोबा टेक सिंह में शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी और शबी और जुलजना का जुलूसी मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया झंग रोड से बरामद हुआ, जिसमें आज़ादारान ने शहदा करबला को पुरसा पेश किया। टोबा टेक सिंह में शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी और शबी और जुलजना का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर
روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوا۔ عزاداران نے کثیر تعداد میں جلوس میں شرکت کی۔ جلوس کے راستوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ داخلی اور خارجی راستوں کو خاردار تاروں کی مدد سے بند کیا گیا اور شرکاء کی مناسب چیکنگ بھی کی گئی۔ بریک کے بعد آپ کو خبر دیں حیدرآباد سے، جہاں 8 ماتمی جلوس برآمد ہوئے جن میں ہزاروں عزاداران حسین نے شرکت کی۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں 8 ماتمی جلوس برآمد کیے گئے جو ذوالجناح کے ہمراہ اپنے مقررہ راستوں پر گامزن رہے۔ جلوسوں میں 1000 مومنین نے شرکت ہو کر واقعہ کربلا کی یاد میں قافلہ حسینی کو پرسہ پیش کیا۔ ان جلوسوں کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں محرم الحرام میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی محرم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ 7ویں محرم کو خپلو شہر کے مختلف مقامات پر دودھ، شربت اور سوپ کی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا۔ محمد علی عالم کی رپورٹ دیکھیے۔ محرم الحرام شروع ہوتے ہی مختلف علاقوں میں نظر و نیاز اور سبیل کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام شروع ہوتے ہی خپلو شہر کے مختلف مقامات پر نوجوانوں کی جانب سے سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ کربلا کے میدان میں آل رسول کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے نوجوان راہ چلتے لوگوں کو دودھ، شربت اور سوپ پلا رہے ہیں۔ منتظمین کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں یزید نے آل رسول پر پانی بن کر کے ظلم کی بدترین مثال قائم کی تھی، جس کی یاد میں ہر سال محرم الحرام شروع ہوتے ہی سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سبیل کی وجہ سے جو ایمان کی سواروں کی وجہ سے لوگوں کو دینی سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر لگائے گئے سبیل میں مختلف مسالک کے لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ سبیل جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے کربلا میں آل رسول کی عظیم قربانی کو یاد کرتا ہے، وہاں مذہبی ہم آہنگی کو بھی فروغ ملتا ہے۔ محمد علی عالم، سچ نیوز، گانچھے۔ پارا چنار میں 7 محرم کا جلوس برآمد ہوا جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا رات کے مرکزی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ مرکزی امام بارگاہ سمیت ضلع بھر کے امام بارگاہوں میں عزاداری جاری ہے۔ 7 محرم کے ماتمی جلوس میں عزادار شریک ہیں۔ عزادار سینہ کوبی و ماتم کر کے امام حسین اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جلوس کے راستوں میں عزاداروں کے لیے سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ خبر شامل کریں پشاور سے، جہاں ضلعی انتظامیہ کے احکامات کی خلاف ورزی جاری ہے۔ پیٹرول پمپ پر پابندی کے باوجود بھی شہریوں کو بغیر ہیلمٹ کے پیٹرول مل رہا ہے۔ عدنان شاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور شہر میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بغیر ہیلمٹ کے پیٹرول پر پابندی تو عائد کی گئی، مگر پیٹرول پمپ انتظامیہ اور شہری دونوں ہی خلاف ورزی میں مصروف عمل ہیں۔ شہریوں نے بھی ہیلمٹ نہ پہننے کی عجیب منطق سنا دی۔ لوگ ہے نا، پولیس والا اور پیٹرول والا ہم لوگوں کے لیے وہ بات کرتا ہے نا، صحیح ہے، لیکن میں نے گھر پر چھوڑ دیا یہ گرمی وجہ سے۔ ابھی تو سب نے نہیں پہنے، اس وجہ سے پابندی نہیں ہے، حکومت نے تو پابندی ڈالا ہے۔ چند پمپ مالکان تو سختی سے عمل درآمد کروا رہے ہیں، لیکن شہریوں نے بھی اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ ہیلمٹ نہ ہونے پر دوسرے موٹر سائیکل سوار سے ہیلمٹ لے کر پیٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے۔ نہیں ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، بس ابھی جلدی میں نکل گئے، بس ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہے اسی لیے۔ تو ایک تو عوام کی طرف سے ہے کہ یہ غفلت برت ہے، لیکن یہاں پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے اور پیٹرول ڈال لیتے ہیں۔ پیٹرول پمپ پر لگے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بینرز بھی عوام کی نظروں سے اوجھل نظر آتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے خلاف ورزی پر متعدد بار پیٹرول پمپس مالکان کے خلاف کارروائی تو کی گئی، مگر اس کے بعد کچھ عرصہ خاموشی رہی جو آج بھی برقرار ہے۔ کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ کورونا لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر میں بھی تعمیراتی کاموں میں تیزی آ گئی۔ کام ملنے سے مزدور بھی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلطان سدھو کی اس رپورٹ میں۔
टोबा टेक्सिंग हुकूमती इकदामात और मौसर हिकमत अमली की वजह से कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाया गया लॉकडाउन खत्म हुआ तो तमीराती काम में भी तेजी आ गई है। शहर भर की कॉलोनियों और मोहल्लों में तमीराती काम तेजी से जारी है। हुकूमत की जानिब से डेवलपर और शहरियों के लिए तमीराती काम में बेहतरी लाने के लिए बहुत से इकदाम किए गए और शहरियों को तमीराती काम में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया गया। कोरोना लॉकडाउन की वजह से परेशान मजदूरों को काम मिलना शुरू हो गया है। टोबा टेक्सिंग में भी लॉकडाउन के बायस बहुत से लोग बेरोजगार हुए और बहुत से लोगों का कारोबार तबाह हो गया। तमीराती शोबे में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि महंगाई की वजह से घर का गुजारा करना मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए कि आम मजदूर की मजदूरी में भी इजाफा करे। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मुल्क को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का मिशन रहीम यार खान के इलाके कोट सब्जाल में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से पौधे लगाए गए। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। कोट सब्जाल मोटरवे पुलिस सैयद कलीम इमाम की हिदायत के मुताबिक नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बेट 24 रोशन भेट के अफसरान और अमले ने फेज 3 मैसेंजरपुर के मुकाम पर मोटरवे सेंटर रिजर्वेशन में 100 से ज्यादा पौधे लगाए। इस मौके पर डीएसपी मोटरवे पुलिस फरासत अली बंजर का कहना था, हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जनाब अहमद अरसलान मलक साहब और सेक्टर कमांडर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सेंट्रल 3 जनाब मियाँ मोहम्मद अफनान अमीन साहब की खुसूसी इंस्ट्रक्शंस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान एक मुहिम का आगाज़ किया है, बतौर अदारा हम भी उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और सायादार प्लांटेशन दरख्तों की प्लांटेशन कर रहे हैं। दरख्त लगाना सदका जारिया है। दरख्त माहौलियाती आलूदगी को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जाल। मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। सहवाल में पीएचए की गफलत के बायस शहर के ग्रीन बेल्ट्स जंगली झाड़ियों में तब्दील हो गए। रिपोर्ट करेंगे एहतशाम अली। शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए कायम किया गया महकमा पीएचए, जिसकी जिम्मेदारी में शामिल है शहर की खूबसूरती और सफाई का ख्याल रखना। मगर अफसोस कि महकमा पीएचए साहिवाल की खूबसूरती को बरकरार रखने की बजाय शहर को कूड़ादान बनाने में मसरूफ अमल है और इसको अपनी नाहली की भेंट चढ़ाने में कोई कसर बाकी न उठा रखी है। साहिवाल में बने ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों की बदतरीन हालतेजार शहर की खूबसूरती को तबाह बर्बाद करके वीरानों के मनाजर पेश करने लगे हैं। इन ग्रीन बेल्ट्स की ताजीनो और राइश पर लगाए गए हुकूमती खजाने के लाखों रुपए का ज़िया किया जा रहा है, जो अब तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। जो पीएचए साहिवाल की अदम तवज्जोही और नाहली की वजह से जंगली बूटियों और बदनुमा झाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। ग्रीन बेल्ट्स की सफाई न होने की वजह से जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। शापर और दूसरी अशिया इन जगहों पर बिखरे पड़े हैं और कोई भी इनको उठाने और सफाई करने को तैयार ही नहीं। साहिवाल में पीएचए का अमला तनख्वाहें लेने और मनी जमा खर्च के अलावा कुछ करने से कासर दिखाई देता है। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज, साहिवाल। महकमे मौसमियात ने दरिया जेहलम में फ्लड अलर्ट जारी किया तो जिली इंतजामिया ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। जेहलम में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद भी किया गया। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने दरिया जेहलम में सैलाब का अलर्ट जारी किया तो जिला इंतजामिया ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। रेस्क्यू और दीगर इदारों ने दरिया जेहलम में सैलाब से शहरियों को कैसे बचाना है मॉक एक्सरसाइज शुरू कर दी। कमिश्नर रावलपिंडी ने भी तमाम इंतजाम देखे और ब्रीफिंग ली। फ्लड की सिचुएशन को भी मॉनिटर कर लिया गया, रिव्यू कर लिया है, अरेंजमेंट्स जो है वो हमारे इन प्लेस है। लेकिन अगले 24 घंटों में हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक दरमियाने दर्जे का सैलाब आए, जो कि हमारा जो डैम है उसके गेट खोलने की वजह से आएगा। तो उनकी आज हम शाम को ये मुतलका अथॉरिटी के साथ मीटिंग हो जाएगी जिसमें फ़ैसला हो जाएगा और शायद कल सुबह से गेट्स खोलने हैं जिसमें तकरीबन 1 सवा लाख क्यूसेक वाटर शायद रिलीज़ हो। तो उस हवाले से हम इंटीमेट कर देंगे इन एडवांस उन तमाम गाँव को जो बीच में आ रहे हैं, तकरीबन महल में 17 गाँव शायद आ रहे हैं और कुछ जो बाकी दीगर कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह आ रहे हैं उनको भी हम बता देंगे, जो आइसोलेटेड आबादी है उनको भी। शदीद बारिश की पेशन गोई पे दीगर महकमों से मिलकर मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। सैलाब से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का कहना था तमाम जरूरी आलात जिला इंतजामिया के हवाले कर दिए हैं। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर लियाकत ने मारूफ सनतकार के हमरा शुजाबाद का दौरा किया और कुव्वत गोयाई से महरूम 150 अफराद में राशन और कैश तकसीम किया। मजीद जानते हैं वजाहत हुसैन की इस रिपोर्ट में।
शुजाबाद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक और मरूफ सनतकार ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी के हमरा शुजाबाद का दौरा किया और कुव्वत समात गोई से मरूम 150 अफराद में राशन और कैश तकसीम किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर, वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ डफ के सदर गुलाम मुस्तफा और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। तकसीम करदा राशन में आटा, दालें, चावल, चीनी और दूसरी एशिया जरूरियात शामिल थी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना था कि कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी मईशत को मुतासिर किया है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हमारे दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर हुआ। हुकूमत ने मुतासरा तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत जिला मुल्तान में 3 अरब 86 करोड़ 60 लाख रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का मजीद कहना था कि ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने समाजी कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। दुख इंसानियत की खिदमत से बढ़कर और कोई खिदमत नहीं। इस मौके पर ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने शुजाबाद के गरीब अफराद के लिए 25 लाख रुपए से फंड कायम करने का ऐलान भी किया और कहा कि जरूरतमंद गरीब आदमी को कारोबार के लिए कर्ज हसना के तौर पर 50,000 दिए जाएंगे। कर्ज हसना देने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाएगी, जबकि देगर अहले सरवत और मुखिर हजरात भी फंड में अतियात जमा करा सकेंगे। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा वजहत हुसैन, सच न्यूज शुजाबाद। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सुनानुमा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से लाखों रुपए भी बरामद कर लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुन्नीर हुसैन। थाना सिनामा की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 माह कबल डकैती की वारदात करने वाले 3 मुलजमानों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान समीउल्लाह, सकलैन और मुलाजिम तनवीर ने अपने ही मालिक के घर में डकैती की वारदात की थी। मुलजमान ने गन पॉइंट पर 8 लाख रुपए और $400 डकैती की थी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मुदई का मुलाजिम ही घर का भेदी निकला और साथियों की मदद से वारदात की थी। यहाँ सिनामा शहर से डकैती की वारदात हुई थी। जो घर के मालिक थे उनका ही मुलाजिम उनके घर का भेदी निकला और उसने अपने दोस्तों के हमरा मालिक की गैर मौजूदगी में ये डकैती की वारदात की थी। तकरीबन इसमें 8 लाख नकदी और $400 थे। उसमें उन लोगों ने असला के ज़ोर पर डकैती की। बाद में DPO साहब की हिदायत पर मकामी पुलिस ने अपनी टीम के हमरा इन तीनों मुलजमान को गिरफ्तार किया और 7,15,000 रुपया नकद रकम और डॉलर रकम और इनके पास जो वेपन थे वो भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 7 लाख रुपए और डॉलर और डकैती में इस्तेमाल होने वाला असलम बरामद कर लिया गया। मुद्दईयों की जाने से पुलिस को कामयाब कार्रवाई करने पर हार पहनाए गए और पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। अमीर जमात इस्लामी पंजाब राव जफर इकबाल ने लिया का दौरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। अमीर जमात इस्लामी पंजाब राव जफर इकबाल ने दौरा लिया के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जहां उन्होंने हुकूमत की नाकिस मुआशी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की। वहीं उनका कहना था हुकूमत हर मैदान में नाकाम हो चुकी है। मौजूदा दौर में जितनी करप्शन है शायद ही कभी ऐसा था। इस पर मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका है। अपोजिशन का किरदार फ्रेंडली है। बज़ाहिर तो अपोजिशन रहनुमा तनकीद करते नजर आते हैं, मगर अंदर खाने हुकूमत से रियायत लेकर साथ दे रहे हैं। साथियों से खूबसूरती गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था और इंशाअल्लाह वल अजीज जमात इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। बिल्कुल इसी तरीके से लिया की सड़कों की बुरी हालत है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा करते हैं कि वो सड़कों की मरम्मत कराएं और उन गड्ढों को पुर करें, उनकी सरफेसिंग ठीक करें। इसी तरीके से तालीमी इदारों के बारे में हुकूमत कोई वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करे और यूनिवर्सिटीज़ ने जो फीसों में इजाफा किया है उनको में तलबा को रिलीफ दे। इस दौरान उनका मजीद कहना था लिया में शहरात की अब तक सूरत हाल के बायस होने वाले आयर हादसात और अमवात का खून भी हुकूमत के दामन पर है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आजाद कश्मीर के जिला बाग में भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रिपोर्ट करेंगे आमिर अली सैयद। रवां माह क़यामत खेज गर्मी के बाद मौसम ने अचानक पलटा खाया। बाग में होने वाली बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। आसमान पर स्याह बादल छा गए। मौसम ने ली अंगड़ाई तो शहरियों को भी सुख की सांस आई। शहरियों का कहना है कि ऐसा लगता है सर्दी फिर से लौट आई है। रिमझिम ने बाग के मौसम को सुहाना बना दिया। एक दिन कबल यहाँ पे शदीद गर्मी का एक लहर थी और रात से तकरीबन ये जो बारिश का सिलसिला यहाँ जारी है तो बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। जिस तपश में हम रह रहे थे एकदम मौसम चेंज हुआ और यहाँ पे जो माहौल है बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। अल्लाह का शुक्र है जी, एक शदीद गर्मी के और हबस के बाद अब्र रहमत हुई है और बड़ा अच्छा मौसम है
फौरी तौर पे महसूस हो रहा है कि अब जो है ना गर्मियाँ चली गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है, ज़बरदस्त मौसम है। हम बिल्कुल, आप भी देख रहे हैं कि मतलब हमने स्वेटर पहनी हुई है, सर्दी है। तो पहले ये था कि गर्मी थी, तो बारिश की वजह से वैसे बहुत मतलब मौसम ठंडा हो चुका है। मौसम के बदलते तेवर ने रंगीन नजारों की दिलकशी में इजाफा कर दिया, ताहम बारिशें अपने असरात छोड़ ही जाती हैं। काफी इंजॉयबल वेदर है हमारे लिए, तो एज अ यंग जनरेशन हम बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन ये कि इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है कि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो हमें जो ट्रैफिक वगैरह के इश्यूज होते हैं वो रिकवर नहीं हो रहे। बाकी जो आप देख रहे हैं सैनिटरी सिस्टम यहाँ का सही नहीं है, वो प्रॉब्लम्स तो एज इट इज़ है, लेकिन वो वेदर जो है अच्छा है। अगर इस पानी को सेव कर लिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी, नदी नालों में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाब का खतरा भी बढ़ गया। बारिश किसी भी मौसम में हो, माहौल पर अच्छे ही असरात मुरतब करती है और माहिरीन के मुताबिक हालिया बारिशें आने वाले दिनों में पानी की कमी को दूर करने का भी सबब बन सकती हैं। कैमरामैन सकलैन हसन के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर को सयाहों की जन्नत कहा जाता है, लेकिन आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से 2 घंटे की मुसाफत पर मौजूद इंतहाई खूबसूरत सयाहती मकाम दक्कन डना माली अभी तक दुनिया की नजरों से ओझल है। तो तेज दरिया, आसमान से बातें करते पर्वत, ताहद नजर फैला हुआ सब्जा और बुलंद बाला सरसब्ज दरख्त, इन तमाम नजारों को यकजा किया जाए तो दिलो दिमाग में वादी कश्मीर का नाम उभरता है। कुदरत के बेपनाह नजारों से सजी कश्मीर की वादियां सयाहों को दावत नजारा देती हैं। इन्हीं मशहूर कुन सियाती जगहों में से एक जगह अपर दक्कन डना माली भी है। अभी तक इस सियाती मुकाम पर बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं, जिसकी वजह से यहाँ सियाती सरगर्मियां उस तरह से शुरू नहीं की जा सकती। दुश्वार गुजार, कठिन और पैदल रास्ता तय करने के बाद जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तो कुदरत की फयाजी इस कदर है कि इंसानी आंखें नजारों को देखकर दंग रह जाती हैं। बुनियादी सहूलियात, सड़क, पानी, बिजली और सेहत की फराहमी से इस इलाके को एक बेहतरीन सियाती मुकाम में तब्दील किया जा सकता है, जबकि मुकामी आबादी को तवानाई के मुतबादल ज़रा फराहम करके जंगलात की बेदरेक कटाई को रोकने के लिए भी इकदाम उठाना इंतहाई जरूरी है। 70 सालों में पहली दफा इसी हल्का इंतखाब से मुंतखब होने वाले वजीर मुस्तफा बशीर इस इलाके को सियाती मुकाम की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के बारे में इकदाम उठा रहे हैं, जो एक खुशाइंद कदम है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबाजात पर भी काम जारी है, जिससे सयाहों की आमदोरफ्त में खातिर ख्वाह इजाफा मुतवक्को है। जन्नत अर्ज़ी खित्ता कश्मीर के बेशतर सियाती मुकामात ऐसे हैं जो अभी तक कैमरा और सयाहों की नजरों से ओझल है। हुकूमत आजाद कश्मीर यहाँ पर बुनियादी सहूलियात फराहम करके न सिर्फ सयाहत को तरक्की दे सकती है, बल्कि मुकामी आबादी को बेहतरीन रोजगार भी फराहम कर सकती है। कैमरा टीम के साथ सैयद नदीम शाह, जहलम वैली, आजाद कश्मीर। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट SachTV.pk। देखते रहिए सच न्यूज।